प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ब्रदर अभिषेक, बहन अरीन और सिस्टर को शोभा जॉन को खुदावन एक प्यारे घर से आशीषित किया। अब उसका नाम मकपेला रखना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से पुनरुत्थान हुआ और खुदावन सोए संजीव थे। धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए। आपका नाम प्रभु यीशु मसीह नाम लेके जब हम इसका फीता काटते हैं तो इस घर में आप ही प्रवेश करेंगे। हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो, अधोलोक के कुंड में देव दृष्टि के लिए बांधी जाए और आपका पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे वास करे। आपका नाम मुबारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में घर का फीता काटते हैं। Very nice. Beautiful. Wow. We all saw it when it was in making. धन्यवाद देते हैं खुदावन इस प्यारे घर के लिए जो आपने अभिषेक, बहन अरीन और बहन शोभा जॉन को प्रोवाइड किया। इस घर में आपकी शांति विराजे और आपकी मौजूदगी यहाँ बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही सुंदर अवसर के लिए जब आपने मतलब अभिषेक, बहन अरीन और सिस्टर शोभा जॉन को एक घर से आशीषित किया। आज हम इसमें आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो है खुदावन इस आवाज से ये घर भर जाए, स्तुति की ध्वनि से ये घर भर जाए और आपका पवित्र आत्मा यहाँ चुम्बिश करे। तो है खुदावन आप आए और यहाँ पे हमसे बात करें। आज का वचन आप हमें बख्शे। सारी मीटिंग को आपके दास प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ब्रदर निश्चय यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदा ने में दिया है, इस प्यारे घर के लिए जिसका नाम मकपेला रखा हुआ है। और हम लोग सब बहुत ही आनंदित हैं इस मकपेला में आकर के। मैं मालूम मकपेला वो जगह थी इंस्पिरेशन के द्वारा जहाँ पे इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को गाड़ा और इट वाज अ गेटवे टू that garden of Eden. Amen. और this is the place जहाँ से resurrection हुआ। खुदा के नाम की तारीफ हो। तो आइए धन्यवाद स्वरूप इस गीत को गाएंगे। मैं सोचता हूँ कि हमें से सबको ही आता होगा। Blessed be the name, all praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for man to die that He might never live. Blessed be the name. Amen. All praise to Him. Blessed
liveth. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's all stand while we sing that chorus. Only believe all things are possible. Before we enter the word. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord. Oh, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Hallelujah, Lord. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Oh, my Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen. We really thank you, my Heavenly Father, Hallelujah. for this opportunity you've given us Amen. to gather in this place Hallelujah. in the beauty of holiness and love Amen. under your blood, desiring a sincere time of fellowship with you. Amen. Lord, I really thank you that whatever you plan for your children Yes, my was Lord. based on redemption. Amen. That's right, Lord. And so I pray, Lord, that as His word says, all things work together for good to them. Amen. That love the Lord. Lord, I know you Hallelujah. are picking us up and glorifying us. Amen. These were your Thank thoughts. you, Lord. And Amen. Lord, I really thank you for your predestination. And then thinking for an adoption for us. Hallelujah. And I pray, Lord, that you give us grace. Amen. While we are here, Lord, in this occasion of inaugurating this place, Yes, my before Lord. Brother Abhishek and his whole family, Amen. Sister Erin and Sister Shobha John shift here. Hallelujah. Oh Lord, I pray may your grace and peace abide in this place. Amen. Now, Lord, you bless us with your word. Is my prayer in the name of Jesus Christ. Amen. आइए हम खुदावंद के कलाम को खोलें। मेरे साथ एक बड़ा जाना माना स्क्रिप्चर आपको दिखाने अय्यूब की किताब और उसका 19वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी 23वें आयत से 27वें आयत तक। Oh, that my words were now written. Oh, that they were printed in a book. That's right. That they were graven with an iron pen and laid in the rock forever. For I know that my Redeemer liveth, that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. हम धन्यवाद देते हैं आज खुदावन इस प्यारे दिन के लिए। दुआ है खुदावन आप आएं और इस घर को ब्लेस करें। आप ही वचन बख्शें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस प्यारे मौके के लिए जो आज प्रभु ने बख्शा।
कि आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हों इस ओकेजन पे। इससे पहले कि ब्रदर अभिषेक और फैमिली इस घर में शिफ्ट करे, पहले इस घर के लिए दुआ हो। और तमाम कंस्ट्रक्शन के कारण और तरह तरह के लोग आए होंगे, काम किया होगा, तरह तरह के सामान जगह जगह से आए लगे, तो मैं कहूंगा कि वो तमाम दुष्ट की चालें विफल। जैसे हमने दुआ भी करी, और मेरी दुआ है कि तमाम दुष्ट की चालें यहाँ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाले लोगों के कुंड में डिस्कशन के लिए पानी ये जगह हमारे प्यारे भाई बहन और सिस्टर शोभा जॉन को फले। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से ये फैमिली प्रभु के साथ चल रहा है, और खुदावन के फजल से धीरे धीरे खुदावन इनको एक ऐसे स्थान पे लेके आए कि ये लोग भी यहाँ शिफ्ट हुए, और अब शिफ्ट क्या हुए, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने घर भी भाई को प्रोवाइड किया। भाई ने मुझे बात करी, बताया, और मुझे भाई राजीव से पता लगा कैसे खुदावन ने एक मिरेकल किया भाई के जीवन में, और कैसे खुदावन ने फंड्स का अरेंजमेंट किया। सो गवाही के तौर पे क्या घर हवा में से गिरते हैं, तो भाई ने यही गवाही दी कि ऐसा ही हमारे साथ है। लेकिन मैं कहूँगा जो हवा से गिरा घर है, आज उसमें हम खड़े हैं। जो विचार था आज सामने प्रत्यक्ष है। जैसे हमने विचार रखा होगा एक आसमानी घर का भी, हम उसमें होंगे, हम चलेंगे फिरेंगे और महसूस करेंगे वो चिरस्थायी भवन जो प्रभु ने आपके और हमारे लिए। अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई बहन ने इसका नाम मकपेला रखा, जो कि एक गुफा थी जहां पे कि अब्राहम, सारा और तमाम पुराने अरनामे के कई संत, खासतौर से वो परिवार पैट्रियार्क्स गाड़े गए, यूसुफ भी वहीं गाड़ा गया, क्योंकि उनके पास एक दर्शन था। ये वो जगह है जहां से कि पुनरुत्थान होगा। आप लोग सब मैसेज को जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूं, खुदा रहम करे कोई चीज समझ में आए। अय्यूब की किताब हम मैंने क्यों उठाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेवलेशन एक क्रिश्चियनिटी वाले वर्ल्ड के पास नहीं था। अगर मैं इंग्लिश में हो जाऊं तो प्रॉब्लम तो उनसे भी जो रिकॉर्ड्स नहीं किए, तो मुझे मालूम अब ये भी रिकॉर्ड होके चला जाता है। एनीहाउ, गॉड ब्लेस यू। तो आप सब लोग जो सुनेंगे, गॉड ब्लेस यू। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, अगर एक नबी ना होता आज, तो शायद अगला वाक्य जो मैं बोलने जा रहा हूं मैं कभी बोल नहीं पाता जिंदगी भर। अगला वाक्य आप पूछे मतलब कौन सा वाक्य ये कि मकपेला की गुफा अब्राहम ने अय्यूब की कब्र देख के चुनी। आगे बात नाउ, ये बाइबल में अगर आप पढ़ें तो ये कहीं पर भी आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है लास्ट मैसेज में मैंने भूमिति पीटर भाई के यहाँ लिया मलकीपुरम में, बड़े इंस्पिरेशन में मैंने उस मैसेज को रखा था। और खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जो भी हुआ दुनिया में, तो दुनिया का हाल चल ही रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि अय्यूब ने बाय रेवलेशन एक जगह देखी। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। नबी ने कहा अपने जीवन के जब लोएस्ट पॉइंट पे था, he was in his darkest hour, और जब वो अपने जीवन के darkest hour में था, when पूरे सर से लेके पैर तक he was filled with boils, and he was scraping his body, और he was in his ash heap, जैसा आप लोग में से सुन चुके हैं, और उस ash heap पे बैठा है, और प्लस ऊपर से कोड़ में खाज 3 मित्र और आ गए जो कि उस पे एक्यूजेशन लगाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया है अय्यूब, ऐसे किसी का हाल नहीं होता है, कुछ याद करो, ये है वो है। हाँ उसमें गलती हो गई उससे कि he started to justify himself। खुदा रहम करे वाला एक पार्ट है जो संडेज को जब हम मीटिंग होती देखेंगे। बट एनीहाउ, लेकिन ये अय्यूब को मालूम नहीं था कि मुझ पे बाजी लगा रहा है मेरा खुदा। और ये लड़ाई खुदा और शैतान के बीच में, और खुदा प्रूव करेगा शैतान के सामने, हालेलुया, जब मैं किसी पे दम भरता हूँ मेरा नाम भी खुदा है।
तभी मैंने चुन के पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को कंसिडर किया? Yes. और यह अय्यूब, क्योंकि खुदावन ने न्याय नहीं है, क्योंकि ये खुदा की ओर से हुआ, तो जो कुछ भी हुआ अय्यूब के जीवन में उसमें कुछ बेहतरी तो होनी ही थी। और वो बेहतरी क्योंकि खुदावन की ओर से अलाउ किया गया डेविल को, तो फिर मैं कहूंगा खुदावन ने ही कुछ करना है अय्यूब को उठाने के लिए। When he came to the lowest part of his life, जो कि जिंदगी का darkest hour था, he was stripping his boss, everybody left him, यहाँ तक कि उसके अपने खानदान के लोग उससे पीछा छुड़ा के दूर गए, कोई रिश्तेदार फोन नहीं करता, सब अलग हैं, मतलब he is just left alone, and in fact उसकी खुद की पत्नी नबी ने कहा कि curse God and die, मतलब उसने कहा तू एक बेवकूफ औरत की तरह बोलती है, इस किस्म की बातें हैं, क्या हुआ मैसेज, सारी डिटेल आपको मालूम है। लेकिन नबी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कुछ खुलना शुरू हुआ अय्यूब के साथ, जो शायद सुख में रहते हुए ना भूला। तो एक फेज भी खुदावन लेके आते हैं कुछ चीज खोलने के लिए। और उस दुख की घड़ी में एक दिन में बच्चे, एक दिन में गाय बैल भैंस ऊंट और सब खत्म हो गए जी। उन्होंने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। अब इतना ही काफी नहीं कि सिर से लेके पैर तक कपड़ों से भर गए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं और बुरा हाल है, स्क्रैप कर रहे हैं और बुरा हाल है और समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। इस हालत में कुछ सोच विचार चालू हुए और सोच ऐसे चालू हुए कि जब वो बैठे हैं ऐश ईद पे तो एक विचार आना शुरू हुआ, देखो लोग मुझसे ज्ञान सुनने आते हैं और सच बात है मेरे को खुदा ने ज्ञान दिया, तो इस ज्ञान को अगर मैंने पाया तो मैं देख पाता हूं कि एक पेड़ मरता है लेकिन फिर बसंत ऋतु में जी उठता है, नई पत्तियां निकलती हैं, बारिश नहीं होती है, नदी सूख जाती है, बारिश आती है, वो नदी फिर जाग जाती है जी और नदी में जीवन आ जाता है। हर चीज में जो प्रकृति में है, प्रकृति में है, मैं कहूंगा आप पाते हैं कि मरना और फिर से वापस आना है जी। हम इंसानों का क्या होगा, हम आते तो हैं कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं उसको गाड़ देते हैं, उसके बाद क्या। ये विचार अय्यूब के जीवन में उस दुख की घड़ी में आना शुरू हुए और जब उस दुख की घड़ी में ये विचार आना शुरू हुए कि आफ्टर ऑल एक इंसान का क्या होगा, तो उसके पास जवाब नहीं, लेकिन उसको ये मालूम है कि अगर मैं भी खुदावन की योजना का एक हिस्सा हूं और हर चीज जो खुदावन की योजना को पूरा करती है उसके लिए एक रिजरेक्शन है, तो कुछ ना कुछ हम इंसानों के लिए भी है। और तब वो 14वें अध्याय में कहता है मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है थोड़े दिनों का है जी, लेकिन एक पेड़ के लिए ज्यादा उम्मीद है। और ऐसी बातें करने के बाद ये है कि पूरी जिंदगी भर मैं इंतजार करूंगा जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आए। उसको मालूम था एक दिन आएगा मैं बदलूंगा, उसको मालूम था एक दिन आएगा जब समय बदलेगा और समय बदलने वाली कोई घड़ी होगी, मुझे नहीं मालूम क्या है कैसे है। ही इज इन अ होपलेस स्टेट और उस होपलेस सिचुएशन में जब सब लोग छोड़ के जा चुके, ही इज लेफ्ट अलोन। खुदावन अपने विश्वासी को टेस्ट के ग्राउंड पे एक ऐसे स्थान पे ले आया कि वो यहां तक पहुंच गया कि नोबडी इज देयर विद हिम जी। और खुदावन ऐसे हार्ड ट्रायल्स एंड टेस्ट्स देते हैं, बट टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। बिना टेस्ट के प्रमोशन नहीं है, बिना टेस्ट के अडॉप्शन नहीं है, बिना टेस्ट के पावर नहीं मिलती है। इससे पहले कि पावर मिलने से पहले होटल लाइफ नहीं है, पावर मिलने से पहले थोड़ी सी क्रिश्चियन लाइफ है जिसमें की ट्रबल्स है, जिसमें की प्रॉब्लम्स है। आप सहते हैं, आपके सामने दूसरा हंसेगा, खुश होगा और आप रोएंगे और तब आप सोचेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिचुएशंस आती हैं विश्वासी के जीवन में, जब वो देख के हैरान होता है कि यार देखो ये हंस रहे हैं जबकि बुरे हैं, लेकिन हम जो आपको की भक्ति करते हैं हम रोज सफर करते हैं, ये क्या चक्कर है। यू नो ऑल दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन विद अ बिलीवर। और जब ये विश्वासी के साथ ऐसी चीजें होती हैं, ही इज ब्रॉट टू अ प्लेस क्या वो सोचे कि बेयर मिनिमम पे आ जाए और रूट्स पे आए, सोचने के लिए व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का एसेंस क्या है, मुझे खुदावन कहां लेके जाना चाहते हैं, वेयर डज ही एक्चुअली वांट मी। और जब ऐसी हालात में वो पहुंच गया, ही वाज इन हिज डार्केस्ट आवर, when Jesus came, I want to tell you
नबी ने कहा ऐसे सुबह 8 बजे का टाइम होगा। आपको टाइम कैसे मालूम? हम कैसे कहा? It was a very clear day. How do you know, Brother Branham, it was a clear day? कि उन्होंने कहा कि someday this would become a text to me. अपने आप को अय्यूब में देख पा रहे थे और एक घटना को देख पा रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हुआ। Try to understand this. खुदावन हमारी समझो खोले। अय्यूब ने एक दिन सुबह ऐसे बैठा था और तब नबी ने बोला because this scripture is parenthetical, ये कोष्ठक में है, इसलिए कि ये यहाँ बिलोंग करता नहीं है 19वें अध्याय में, लेकिन ये यहाँ का है नहीं। आपकी समझ आ रही है? That's right. ये है 19 में। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने क्या बोला? ये है 19 में, लेकिन ये 19 का ना होके ये स्क्रिप्चर लगभग बिलोंग करता है 41-42। आपकी समझ आ रही है? ये 41 और 42 वाला है स्क्रिप्चर, ये 19 वाला नहीं है। ये लिख यहाँ दिया। ये भी चीज मैं नहीं समझ पाता। अगर एक नबी नहीं होता और एक नबी ने अय्यूब के बारे में नहीं बताया होता तो ये वाला पार्ट भी मैं जिंदगी भर नहीं समझ पाता। तो नबी ने ये बोला जब एलीहू ने आके बातें करी और कहा मैं तुझे जस्टिफाई करने आया हूं। अब 19वें अध्याय में तो मुझे एलीहू दिखता ही नहीं। एलीहू का तो आना ही करीब 38 के बाद 37-38 के आसपास चालू होता है। एलीहू तो उस अध्याय में आके है। तो नबी ने कहा जब एलीहू ने आके बोला, उससे कहा व्हाई आर यू जस्टिफाइंग योरसेल्फ बिफोर गॉड, ये काम तो गलत कर रहा है कि तू अपने आप को खुदा के सामने धर्मी ठहरा रहा है। नबी ने कहा then the blast took place. You see, it is after Elihu came, ये चीज अय्यूब के जीवन में हुई। मुझे भी ये वाली बात भी कभी नहीं मालूम पड़ी। मैंने 2 बातें रखी आपके सामने। अब्राहम ने अय्यूब की कब्र देखी, मुझे नहीं मालूम। अगर एक मलाकी 4:8 नहीं आता और ये मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ये तब कहा जब एलीहू की बातचीत हुई। ये भी मैं नहीं पकड़ पाता। लेकिन जब तक मैसेज ना खुले और कोई आए नहीं समझाने वाला हम समझ कैसे सकते हैं? धन्यवाद हो एलिया के, धन्यवाद हो इस एलिया की आत्मा के लिए जिसने आज मुझे और आपको विजिट किया। धन्यवाद हो खुदा ने अपना एक ऑफिशियल इंटरप्रेटर होली को एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में दिया। खुदा का नाम मुबारक हो। जब वो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट ने ये बातें बताई, ये राज हमारे सामने खुलना शुरू हुए। तब मैंने बाइबल और गाड़ के पढ़ना शुरू किया। मुझे हर पॉइंट याद नहीं है, अगर रहम करे मैं बैठूंगा याद आ जाएगा, जिनको खुदा ने चाहा धीरे धीरे हम रखेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें क्योंकि आज एक इनोवेशन है मैं रखने की कोशिश करूंगा। अय्यूब ने जब एलीहू से सुना, चौथा जन एलीहू आया, 3 आ चुके थे लेकिन कोई शांति नहीं दे पाए। लेकिन जब एक चौथा एलीहू आया, नबी ने बोला वो तस्वीर है मसीह की। ये मसीह का आत्मा था जो उतर के आया एलीहू में, ये कहने के लिए मैं तुझे दोष लगाने नहीं, मैं तुझे जस्टिफाई करने आया। तू अपना जस्टिफिकेशन मत खोज, अपने आप को धर्मी ठहराना बंद कर दे। Essence says, Job, let go. Amen. If you want restoration, hallelujah. If you want to be restored, if you want all that the worms have eaten, be restored. Yes, sir. एक तरीका है, you can't restore yourself. तू अपने आप को restore नहीं कर सकता। I am the God of restoration. And just believe on me and wait. And wait. और देखो तुम्हारी घड़ी आएगी। And you will have your restoration. जब तुम्हें मैं वापस बहाल करूंगा तब देखना। हाँ एक चीज है, तुम क्लेम कर सकते हो अपना रेस्टोरेशन। I will give you that power. You can pray. You can say, Lord, when? ये तुम कर सकते हो। But then the point is, restoration देने वाला मैं हूँ। तो टाइम आएगा and I will restore you. आपकी समझ आ रही है? जो कुछ तुम्हारे जीवन में पुराना घटा, जिसमें तुम घाटे में गए, तुम्हारे सारे घाटे अय्यूब एक दिन में पूरा करूंगा। फाइनली बाइबल में लिखा है, अय्यूब की किताब यहां क्लोज होती है जहां उसने कहा मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वहीं पे खुदा उसे मिला था, अभी मैं बात करूंगा उसके आगे। और तब वहीं पे खुदा ने अय्यूब को बरकत दी और बरकत ये दी कि उसे दुगना भाग दिया। जो उसने खोया था उसका दुगना मिला। और क्योंकि उसका नाम है डबलिंग,
डबलिंग के लिए वर्ड है मकपेला। मकपेला एक्चुअली मींस डबलिंग। जो कुछ आपका खोया उसका खुद नाम मैं तुम्हें बताता हूं। In other words, जो कुछ आपने खोया, in the process of restoration, I will return to you the double. That's what Makpela means, doubling. It was a place of doubling. It was a place जहाँ पे खुदावन की आशीष अय्यूब को मिली। I want to tell you कि हजारों साल पहले आया, सैकड़ों साल तो मैं अब्राहम से कह सकता हूँ, अब्राहम से सैकड़ों लगा देते हैं, हमारे से तो हजारों ही लगा दीजिए। ओल्डेस्ट बुक है बाइबल, जो कि नबी ने बताया, लेकिन बाइबल के बीच में आ गई। जेनेसिस बाद में लिखा गया, अय्यूब पहले लिखी गई। अजीब लगता आपको? जेनेसिस बाद में लिखी गई, अय्यूब उससे पहले लिख गई। इससे पहले कि जेनेसिस लिखा जाए और क्रिएशन शुरू हो, एक किताब पहले है उससे, आई नो माय रिडीमर। इससे पहले कि क्रिएशन का काम शुरू, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। ये परिभाषा आपने सीखी बाइबल को, हमेशा खोल के उत्पत्ति से पढ़ते हैं, बट दैट वाज रिटन बाय हूम? मोसेस। आपकी समझ आ रही है? लेकिन इससे पहले कि मोसेस ये पहली लाइन पेन करे, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, उससे पहले एक जन आ चुका था जो ये लिख चुका, काश मुझे लोहे की टांगी से लिख दिया जाए, आई नो माय रिडीमर। सुनिए, तो सीक्वेंस एक्चुअली बाइबल का जो लिखने का था वो ये था, I know my Redeemer liveth. In the beginning God created the heaven and earth. In other words, even before you could talk about creation, there was a redemption. A Redeemer. Somebody got a revelation. There's a life after death. Just a minute. समझने की कोशिश करिए। बिफोर जेनेसिस लिखी जाए, अभी तो उत्पत्ति 1 में नहीं लिखा गया, फिर उत्पत्ति 2 लिखा जाएगा, फिर उत्पत्ति 3 लिखा जाएगा, जिसमें the day you eat thereof that day you shall die, and then the man died, जिसका इफेक्ट आज भी चल रहा है। Before the man could die in Genesis 3, a book of Job had been written. I mean, records में, एक्शन में नहीं, records में। इससे पहले कि रिकॉर्ड्स में जब बाइबल का लिखने की सीक्वेंस आएगी, सुनिए समझने की कोशिश करिए। इससे पहले कि मूसा ये रिकॉर्ड में डाले कि तीसरे अध्याय में कैसे उन्होंने फल खाया और वो मर गए, उससे पहले एक रिकॉर्ड लिखा जा चुका था। और वो क्या रिकॉर्ड था? कि मरने के बाद जीवन है। अब इंसान मरा नहीं, कि उससे पहले रेवलेशन आ चुका कि मरने के बाद एक जीवन है। आपकी समझ आ रही है? अभी वो रिकॉर्ड बना भी नहीं उस पति का, कि जो का रिकॉर्ड पहले बन चुका है। आप इस पॉइंट अब आपको ये बात समझ में आएगी कैसे ये ओल्डेस्ट किताब थी और कैसे इस किताब में अय्यूब ने सहा, लेकिन वो सहना एक पीरियड के लिए था। Paul said the sufferings of this present time are not compared to the glory which shall be. For the earth waited for the manifestation of the sons of God. But you know what? They had to go through some periods of testing and trying. Job had to go, but out of all them, God said, I will hear his prayer. In other words, ये है मेरा प्रिय पुत्र, अब मैं इसकी सुनूंगा। ये जो दुआ में कहेगा, मैं इसकी दुआ करूंगा। God had adopted Job, but before his adoption, there's suffering. But remind you, suffering eternal नहीं है, suffering का एक end है। एक दिन आता है जब suffering खत्म होती है, मौसम पलटता है, समय पलटता है, जब समय पलटता है, तो वहाँ पे फिर कुछ होना शुरू होता है। The invisible became दृश्य में आ गया। नबी ने कहा, I heard now इसी के मैसेज में, for the first time, that's right, Job started seeing God's reaction. I love that line very much. आपने बहुत दिनों तक विश्वास किया किसी बात पे, लेकिन खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, पर एक दिन आया जब आपको पहली बार एक खुदा का रिएक्शन सुनने को मिला। Now you know God started reacting to what you believe. आप जो विश्वास कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो बाकी विश्वास कर नहीं सकते। आपने एक असंभव पे विश्वास किया। आज जब मैं आ रहा था तो बोर्ड पे लिखा हुआ था,
आप कहेंगे भाई आप बोलते हैं, फिर आप ही बोलते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड पे देखा था, ये घटना तो घटना है, और बोर्ड पे है तो मेडिकल एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उस पे लिखा था असंभव संभव, और संभव को गोले में डाल दिया, आ बाहर कर दिया, और ये बोला असंभव अब संभव है। हम और आप अब ऐसे मौसम में अब आ गए जब असंभव, और ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए तो असंभव ही है, लेकिन असंभव संभव है कुछ उनके लिए जो खुदा के। So you'll find कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ। Then जो जबकि अपने जीवन के लोएस्ट आर पे है, he's sitting there on his ash heap, उसके दोस्त अब चुप हो चुके हैं, एलियू भी आगे बात कर चुका, नबी ने कहा he heard a blast on a clear day, and when he saw that blast, उस ब्लास्ट में एक विजन खुला, और जब वो दर्शन खुला, he could see another Job, उसने देखा वो निकला अय्यूब, उसने अय्यूब को निकलते हुए देखा इस जगह से, वो जगह उसकी आंखों के सामने थी, उसने वो जगह देख ली, ये है जगह जहां से अय्यूब चाहे कीड़े उसे खा ले निकल के बाहर आए, और उसने ये देखा वहीं पर एक और खड़ा है सफेद पोशाक में, जिसके बाल ऊन जैसे हैं, और एक बदन में खड़ा है वो, और अय्यूब ने जब उसको देखा, पहचान लिया, उसे रेवलेशन मिला, ये रहा मेरा छुटकारा करने वाला। इतने सालों से मैंने कईयों के लिए दुआएं करी, मैं खुदा और इंसान के बीच में खड़ा हुआ, मेरी ये दुआ थी, और मेरा एक सवाल हुआ करता था, मेरे लिए कौन खड़ा होगा, लेकिन अब पहली बार मैंने देख लिया मेरे लिए कौन खड़ा हुआ है। Huge revelation. You come to know who stood for you, who stands for you. I know you are praying for everybody. I know you are praying for everybody. Who stands for you? जब आपको ये revelation मिले, that's a very different day. Then you know, then you are rested. मेरे लिए भी कोई खड़ा है। I have an advocate. He was searching for a man. तो एक हाथ इंसान पे और एक हाथ खुदा पे। Somebody who was standing between him and God. He was trying to search that provided place. He was trying to find a provided place. मैं आपकी उपासना कहाँ करूँ? मैं आपके और अपने परिवार की उपासना होती है। आपका परिवार भी खुदा है। He was trying to find that place. But one day came, जब वो ब्लास्ट हुआ और अदृश्य एकदम दृश्य में आया। He first saw the hair. फिर उसने आंखें देखी, फिर उसने वो बादल देखा, फिर उसने चेहरा देखा, फिर उसने पूरा शरीर देखा, पूरा शरीर खड़ा हुआ है। मैं सीक्वेंस को बोल रहा हूँ, आप में जन पहचाने में क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब वो सामने आके खड़ा हुआ, और तब उसने देखा जैसे ही वो पृथ्वी में खड़ा हुआ, वो किसी गुफा से निकला था। उसने वो गुफा देख ली, जो बाद में यूसुफ अरमतिया की कहलाई थी, और देखा कैसे वहां से कोई निकल के आके खड़ा हुआ, और जब वो निकला तो मैं भी निकला। उसने फ्यूचर देख लिया, एक दिन आ रहा है जब my redeemer shall stand up. Our price has to be paid. मैं तो केवल बैलों बकरों के लहू को ही समझा सकता, लेकिन इससे ऊंचा एक उत्तम लहू है जो मेरे लिए और आपके लिए बहा गया। When he came to that revelation, that's the day he saw this blast. He heard the thunderings. उसने कलवरी की 7 आवाजें सुनी। उसने वो 7 घाव होते हुए देखे, और देखा कैसे वो उठकर खड़ा हो गया। वो ईस्टर की सुबह देखी उसने, और कैसे वो ग्लोरीफाइड बॉडी में खड़ा हुआ है। यूं भी वहां खड़ा हूं। क्या है ये जगह? उसने पेड़ पहचान लिए, उसने वो जगह पहचान ली। उसने कहा ये नहीं वो जगह, ये है वो जगह, यही होगी जहां मैं अपने गढ़ने का स्थान बनाऊंगा।
कब्र बनाऊंगा जो मुझे मालूम है मैं मरा नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैं मरा नहीं रह सकता। जब मेरा छुड़ाने वाला खड़ा होगा मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो नहीं गया, वो जीवित है। ये ईस्टर का मुकाशफा है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। और मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और चाहे खाल को और जिस्म को कीड़े खा जाए, योएल के मैं तस्वीर जोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप समझेंगे। तब भी मैं इसी शरीर में खड़े होके ये है वो जगह जहां कब्र बनेगी। उसने जगह चूज कर ली। खुदा ने बाद में कहा अय्यूब से कहो तुम तो हो बेवकूफ, तुम 3 की दुआओं को मैं नहीं सुनूंगा। अय्यूब से कहो वो चढ़ाएगा तुम्हारे लिए कुर्बानी, मैं उसकी दुआ सुनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अय्यूब ने कहा मैं वहीं बनाता हूं, वहीं जाता हूं, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। और जैसी जगह पसंद आई और जगह चुनी भाई, वो जगह सोना बन गई। वो जगह का रेवलेशन क्या मिला कि उस दिन के बाद से अय्यूब की तो किस्मत ही पलट गई, क्योंकि उस दिन के बाद खुदा ने कहा अब मैं तेरा सब लौटाता हूं। जो तेरे बच्चे गए साथ, वो 7 युगों के सब वापस आ गए। आप मंच आगे कभी रखेंगे। तेरे सारे बच्चे, तेरे सारे माल असबाब, जो कुछ खोया उसका मैं दुगना तुझे देता हूं। अय्यूब ने कहा बहुत बढ़िया, जगह का नाम फिर मकपेला अय्यूब। यहाँ हर चीज दुगनी हो जाती है। वो जगह है जहाँ हर चीज दुगनी हो जाती है। एक आता है 2 करके जाता है। हमारी आपके तो मेरी दुआ है भाई के परिवार के लिए कुछ ऐसा हो। आए तो 3 लेकिन यहाँ से निकले कुछ और। और मैं आपसे कहूंगा कि वो एक ऐसी जगह बनी जहां हर आशीषें अय्यूब की जो खोई थी वो डबल होके उसके साथ तो खुदावन का नाम मुबारक हो। वहां उसने कब्र बनाया, उसका नाम रखा गया बाद में मकपेला, क्योंकि ये जगह थी दुगने हाथी। बाद में वो जगह पड़ी कनानियों के हाथ, जब जमीन डिवाइड हुई। आपको मालूम है अब इसकी हिस्ट्री क्या है, अब वो डिटेल है, वो लॉर्ड में संडे की मीटिंग में देखेंगे बाद में। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ कि समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कब्र बन गई और लैंडमार्क्स खड़े कर दिए गए और ये कहा गया ये दी फेमस कब्र। जैसे आज की तारीख में मुझे बताइए, क्या जब ताजमहल जाते हैं तो क्या नाम था उसका, मुमताज था नहीं? मुमताज की कब्र नहीं देखते, कहते सबको मालूम है कि अब ये घटना 400-500 साल पहले हो चुकी, लेकिन आज भी सबको मालूम है ये मुमताज की कब्र है। उदाहरण के तौर पे जब जाते हैं वहां पे, अरे शांति पथ नहीं, राजघाट और जब भाई ये गांधी का स्मारक है, यहाँ गांधी ये जगह तो ये आज भी स्मारक है ना। देश बढ़ गया, 70 साल हो गए, कितने साल हो चुके, लेकिन सबको मालूम स्मारक। ऐसे ही अय्यूब के माइटी रेवलेशन के कारण वो कब्र एक स्मारक थी और उसकी चर्चा दुनिया भूल चुकी थी, बेबीलोन भूल चुका था, लेकिन समा वो चर्चा अब्राहम तक पहुंच चुकी थी। जब बाद में खुदा ने कहा मैं तुझे बुलाता हूं उसी देश में चल, वो तैयार हो गया उसी देश में जाने के लिए। और जब वहां पहुंचा और उसके घर में एक ट्रेजेडी हुई कि उसकी पत्नी सारा सो गई, मैं सो गई कहूंगा। तब जब समय आया कि अपने मरे को हम कहाँ गाड़े, तब उसने कहा कि वो जगह देख ली, उसको मालूम थी वो जगह। उसने कहा मुझे यही जगह चाहिए। हित्ती एफ्रोन ने जब बात करी, जब डिस्कशन हुआ, अरे मैं तो दे ही देता हूँ, या आप ले लो, अरे आप क्या बात कर रहे हो? उसने कहा नहीं, इसका दाम बता। दाम था 400 शेकेल चांदी। चांदी आप जानते हैं छुटकारे को दर्शाता है। चांदी दे के वो जगह मोल ली गई अब्राहम के द्वारा। इस जगह को मैं श्योर बनाता हूँ, और वहां लिखा है बाइबल, अगर आप ध्यान से पढ़े, में नहीं पढ़ रहा, वहां के पेड़ और उस जमीन की हर चीज कागजों में लिखी गई और श्योर करी गई कि आज से अब ये अब्राहम की है। अब्राहम ने वो जगह ही परचेज कर ली, जैसे आज भाई पेरी ग्रीन ने वो पहाड़ी परचेज कर ली।
Amen. Yes. जहाँ पे माइटी विजिटेशन हुए, Amen. उन्होंने कहा खुदा ने मुझे रिसोर्सेज दिए तो व्हाई नॉट, Yes. और उन्होंने लगा दिया पैसा। ऐसे ही अब्राहम ने कहा अगर गढ़ेंगे तो यहीं गढ़ेंगे। ये है गढ़ने का स्थान, अय्यूब के पास होना चाहिए, यही जगह है। मुझे अब भी याद है कि ये बात भूली गई थी, मैं जानता हूँ पृथ्वी पे यहीं पे हमारा छुड़ाने वाला यहीं खड़ा है। हमें मालूम है छुड़ाने वाला यहीं खड़ा होगा, यहीं आएगा, वो रेनबो यहीं आएगा, Yes. Hallelujah. वो बादल यहीं दिखेगा, चीजें यहीं दिखेंगी, छुड़ाने वाला जीवित है, वो दिखेगा यहाँ पे। Hallelujah, Lord. थैंक गॉड, हालेलुया। और तब उसने वो जगह जब परचेज कर ली, परचेज करने के बाद सारा वो गाड़ा, बाद में खुद बुजुर्ग हुआ, मरा 175 साल की उम्र पे, उसको वहीं गाड़ा गया, याकूब वहीं गाड़ा गया, यूसुफ वहीं गाड़ा गया वचन के अनुसार, क्योंकि इनके पास एक मुकाशफा था। Yes. ये है वो चुनी हुई जगह Yes. Yes. जहां पे मुकाशफा है एक छुड़ाने वाले का। Amen. तो मकपेला केवल एक कब्रिस्तान नहीं था। Amen. कोई सोचे भाई हमने अपने घर का नाम मकपेला रखा, अरे मकपेला तो नाम एक कब्र का था, आपने कब्रिस्तानी बना लिया अपने घर को। नहीं, एक विचार है, सच्चा है विचार। मकपेला गुफा दी जहां मरे, अपने घर का नाम मकपेला रखने मतलब के अंदर से मरे पड़े क्या? मतलब कहने का ये है कि क्या ये कब्रिस्तान है, लेकिन वहां पे मुकाशफा है। अब वो मुकाशफा खाली मरे हुए का नहीं है, यहाँ मुकाशफा एक छुड़ाने वाले का है। जिस छुड़ाने वाले ने चीजों को दुगना कर दिया, जिस छुड़ाने वाले ने अय्यूब को ब्लेस किया और एक विजन दिया जिसमें वो सोया, बाद में अब्राहम नहीं सोया। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, अब तस्वीर समझने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले कुछ नाम हैं जो हमारे बीच में चल रहे हैं, और जिन नामों के भेदों को धीरे धीरे अनफोल्ड किया जा रहा है हमारे बीच में। अनमाई आपके खुदा का धन्यवाद। आज से 2 साल पहले हमारा घर, उसका नाम ब्यूला रखा। क्यों? उसके पीछे मेरे पास एक डेफिनेट रेवलेशन है। खुदा का नाम मुबारक। भाई निश्चल का ईगल रॉक कहलाया, भाई डॉनी का ममरे कहलाया, कि हमने ममरे को इनॉग्रेट किया। ममरे के बाद फिर उसके बाद कुछ और घर आए, फिर हमने बेतनी को, फिर बेतनी के बाद एक्वेरियस को हमने, और एक्वेरियस के बाद आज हम मकपेला को। What is it? कि फाइनली हम अपनी जर्नी में उस स्थान पे अब आ रहे हैं जहां पे कि कुछ होने वाला है। ये है वो स्थान। मैं इस खाली घर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअल मकपेला की बात कर रहा हूं। Where a double portion, उतर के आया, double portion एक ब्राइड पे अब आने वाला है। ये तो बहुत पुरानी वीडियोस में मेरी पूछे हैं। और एक कल पता नहीं कैसे हुआ, हमारे घर गाड़ी में जागा रहा, एक वीडियो आ गई सामने, चेक शर्ट है हमारी नीली, और मैं वही आई थिंक मोरिंडा में प्रचार कर रहा हूँ। और वो वीडियो मैंने ऑन करी। जब वीडियो ऑन करी तो वहां पे मेन पॉइंट जो वहां हिट किया जा रहा है ये है एक बहुत जबरदस्त पवित्र आत्मा का अभिषेक जो कि इन लोगों को उस साल मैं प्रचार कर रहा हूँ, और एक जबरदस्त अभिषेक पृथ्वी पे आने वाला है ना। अब नोटिस करें, ये चिन्ह हानि हमारे साथ हो गई। जैसे एक ट्रेन गुजरती है, समझ मारिए आपके स्टेशन के बाद स्टेशन, भाई टूंडला निकल गया, भाई टूंडला के बाद आपका ये क्या कहते हैं, अरे वो पंखी निकल गया, पंखी के बाद अब आपका गोविंदपुरी आ गया, गोविंदपुरी आने मतलब तो स्टेशन ही आ गया, उठना शुरू कर देते नहीं। कानपुर आ गया भाई, ऐसे जैसे दिल्ली आ रहा है तो भाई ओखला आ गया, अरे भैया आ गया, अब तो स्टेशन ही आ गया, निजामुद्दीन आ गया, अब तो बहुत करीब आ गए, उठो भाई तैयार हो, हरकत में आ जाओ। ऐसे ही कुछ स्टेशन आ रहे हैं हमारे का स्टेशन गया, नहीं गया, अब यह स्टेशन आ गया। अब ये स्टेशन बता रहा है कि अब तो बहुत करीब आ गए। Amen. Amen. What a day. Today is I think July 3rd, right? 2nd or 3rd? Today is 2nd July and 4th was the Independence Day. Yes, sir.
And just before Independence Day, around this time, he saw the preview of the bride. Hallelujah. Amen. And on 4th July, was Independence Day, on 5th July, he preached Master's Day. Yes. But before 4th, on 3rd or 2nd, he saw this vision. Amen. And he saw that there will be a bride. Amen. What did he see on that day? Yes, क्या देखा उसने उस दिन, उस जुलाई के दिन? When he was at Westwood Hotel. Try to catch the message. क्या देखा? He saw a bride. He saw Miss America, Miss Asia. Yes, sir. He saw the churches. But finally he saw onward Christians. He saw them marching as to war जा रहे हैं. Finally he saw that group is going up. That's a July vision. That's a July vision. Can you catch it? Hallelujah. Ezekiel का दर्शन उठा के देखिए. Again, that's around that same time. When he saw this vision. Yes, sir. आप सोच के देखिए. खुदा का नाम मुबारक है. And where are we? That's right. Where are we? हम उस समय पे आ चुके हैं. When things are bound to happen. Just a little while. And हम जो यहाँ हैं, हम यहाँ होंगे नहीं. हमारे पापा सब सबसे हाथ मिलाएंगे. मैंने कहा था नहीं कि मैं बस 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ. 5 मिनट पापा तो काफी साल हो गए. साल कैसे हो गए? तुम्हारे साल बने होंगे. हमारे तो 5 मिनट ही बने. 5-10 मिनट हुए हमारे. वहाँ तो 5-10 मिनट हम तो अपने जैसा का वैसे आ गए. हम तो आ गए वापस. अब चलो. और जब चलने का टाइम आया, मिलना होगा. इन्हीं घरों में जिनमें इनॉग्रेट करके हम घुस रहे हैं, इन्हीं में संताएंगे. घर में कोई आएगा, बैठेगा, आप बात करेंगे, वो कहेंगे अरे आप हाँ तब आपको समझ में आएगा ये काम चालू हो गया. कहाँ का होगा भैया मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा. जब देखना शुरू होंगे, घर खरीदे जाते हैं रहने के लिए. आप अजीब नहीं लग रहा? ये घर खरीदे जा रहे हैं एक टेम्पररी अबोर्ड के रूप में, जहां से उड़े. ये ट्रेडिशन भी शायद हमारे साथ शुरू हुआ, घरों के नाम रखना. जब हमने एक नाम रखना शुरू किया तब लोगों ने कहा नाम रखना, तो नाम रखने चालू हो गए. और आज नाम रखते रखते आज हम इस नाम पे भी पहुंच गए. बेथनी लास्ट स्टॉप था, जिसके बाद उड़ना था. एक्वेरियस वो जगह थी जहां से आउटपोरिंग थी. उसकी मिस्ट्री खुली गाजियाबाद में. फिर उसके बाद फिर हम आ गए फरीदाबाद में. आप नोटिस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. फरीदाबाद, गाजियाबाद, फिर फरीदाबाद. ये हो रहा. और ये नाम है जो खुल रहे हैं. लेकिन ये नाम जैसे आज भैया भाई अभिषेक बैनरीन और बहन का क्या घर था, क्या खुदावन की तारीफ हो, एक नजरिया देखने का ये. लेकिन जो आत्मिक जन है वो ये देख रहा है यहाँ भेद खुल रहा है. रिबन कटा मकबेला के भेद का रिबन कटा. आज ये भेद इनॉग्रेट हो रहा है. आज ये जो मकबेला की ब्लेसिंग है इनॉग्रेट हो गई. अब तुम इसके भागीदार हो. तो मैं तो केक खाऊंगा, मैं तो केक खाऊंगा, और जो उन्होंने बनाया मैं तो खाऊंगा, क्योंकि मैं तो भाई बड़ा खुश हुआ. मुझे तो एक ऐसे स्थान में जाना था जहाँ अब्राहम के वंशज अब दुगना पाए. मेरा तो दुगना भाव आ रहा है. मैं तो ये घर नहीं देख रहा, मैं कुछ और देख रहा हूँ. पूरा होता जा रहा है. अभी बहुत चीज सोच के देखिए. नेचुरल टाइप स्पिरिचुअल लाइट गई हुई है. नीचे लाइट नहीं, ऊपर लाइट नहीं, सामने लाइट नहीं, पीछे लाइट नहीं, यहाँ लाइट. शाम के समय उजाला होता है. देखिए नेचुरली भी वही है और स्पिरिचुअली भी यही है. इतने ढेर सारे घरों में क्या लाइट है. मैं अब बात कर रहा हूँ आत्मिक तौर से. लेकिन यहाँ पे वो लाइट क्या सच्चाई है. तो खुदावन का नाम मुबारक हो. ब्रदर अभिषेक, बहनरीन, सिस्टर शोभा, आपको खुदावन ये घर फले और आपको मुबारक हो. और दुआ है खुदावन से कि ये जगह मकबेला की आशीषें लेके आए, जिसमें जिस्मों को बदलना है, जिसमें कब्रों का खुलना है, और मैं कहूँगा जिंदा ही बदलना है.
खुदावन का नाम मुबारक हो। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो। और जो खोया उसका दुगना पाना। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक टाइम होता है लुटने का, तो खुदा का फिर एक टाइम होता है भरपाई का। और जब भरपाई होती है तो जितना लुटा उसका दुगना मिलता है। इसलिए मेरे भाई आप अश्योर रहे कि अगर आपने खुदा का हाथ थामा है और आपने विश्वास उस जिंदा खुदा पे किया है, मौका तो दे, वक्त दे। और जब वक्त आएगा तो ये भी देखें खुदा करते क्या है। एक से रूल लाएंगे और एक से कमीशन पास करवाएंगे ताकि आपका फायदा हो। आपका फायदा हो। खुदा हमारे बच्चों पे रहम कर। खुदा ने कहा बोर्ड ही कैंसिल करा देना इस साल, चल बेटा, और सबको पास करना पड़ेगा। चलो भाई हो गया, इस तुफैल में निकल गए। खैर तुफैल नहीं कहूंगा, मैं इसको रहम ही कहूंगा। फिर उसके बाद भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, खुदा का मैं रूल पास कराता हूँ जिसमें तुम्हारा फायदा हो और तुम्हारा फायदा हो तुम निकल जाओ। सजमाए हमारी मम्मी के साथ क्या हुआ, वो एडहॉक पे लगी थी एब्रन मेमोरियल स्कूल में, बहुत पुरानी बात है, तुम्हें याद है। और तब उस साल क्या हुआ कि बात ये थी भाई एडहॉक में तो नौकरी जा भी सकती है, और उस समय पैसे की किल्लत थी, चाहिए था, नौकरी चाहिए थी। पापा हमारे नेवी में थे बेचारे, और जितना भी मिलती थी, और चर्च कोई खास बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो पीटर भाई का परिवार, और उसमें भी मैं सोचता हूँ कि पीटर भाई हुए, अजीत मामू हुए, उस टाइम अजीत भाई थे, 2-3 लोग बस, और कोई नहीं था, ज़्यादा कोई बड़ा चर्च नहीं। पैसे की बड़ी किल्लत, भाई घर भी चलाना है, 3 बच्चे हैं, और घर का किराया भी था। तो खैर वो तो नेवी की तरफ से किराया निकलता था, लेकिन खाने पीने और चीज़ों के लिए तो उन्होंने कहा हम काम करते हैं। अब वो काम भी मिला तो नौकरी मिली स्कूल में, तो एडहॉक की। अब उन्होंने कहा प्रभु रहम करे, प्रिंसिपल बहुत बढ़िया, मिसेस सारा जॉर्ज, शी वाज वेरी नाइस एंड बहुत दयालु थी मम्मी पे। लेकिन फिर भी रूल तो रूल कि भाई आपको हटाया जा सकता है, आपकी जगह कोई और लिया जा सकता है। भाई उसी टाइम कोई रूल आया, मैं भूल रहा हूँ, रूल ऐसा आया कि उस रूल के अनुसार उन्हें परमानेंट ही करना पड़ेगा। जिसने इतने साल काम कर लिया अब वो परमानेंट हो जाएगा। अब वो परमानेंट हो जाए, कोई ऐसा रूल पास हुआ उसी कुछ महीनों के अंदर, और ऐसा रूल हुआ भैया वो परमानेंट हो गया सच में। और वो मार्क्स देती थी, हम उनकी चेकिंग करते थे, मार्क्स हमारा वो टोटली हमारे बच्चों के नाम अजीब अजीब, और फिर वो टोटलिंग बैठ के हम करते थे। गॉड ब्लेस माय मदर, नाम का नाम मुबारक। लेकिन मैं गवाही के तौर पे बता रहा हूँ कि देखिए जब जरूरत हो किसी चीज की तो खुदावन कैसे प्रोवाइड करते हैं। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मेरे पे भाई साजी ने बोला इस बात, और ये बात सच है कि भैया यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। मैंने कहा संजू भाई, साजी भाई, यहाँ पानी बहुत होगा। जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई और मैं गया ऑफिस में वहां, तो बात हुई पानी को, मैंने कहा मैडम यहाँ पानी इतना होगा कि कमी नहीं होगी पानी की, पानी पानी होगा। मैं बाय फेथ बोल रहा था। क्यों, क्या फेथ था भाई, किस फेथ से गया? फेथ ये था भाई जब एक्सोडस लोग गए और जब आप निकासी में निकले, क्या मारा में पानी नहीं मिला? खुदा ने मीठा किया, फिर खुदावन ने चट्टान से पानी दिया। तो ये तो खुदावन है पानी देने वाला। तो जब पानी ना मिले घर में तो उसका इलाज क्या है? ये खुदावन आपको देखिए टेस्ट सिखाते हैं। हम लोग भी बहुत अलर्ट होते जा रहे हैं, दिल्ली में रह के इतना अलर्ट नहीं हो जाओ, यहाँ रह के बहुत अलर्ट होते जा रहे हैं। अलर्टनेस वर्शिप सिखा रही है। क्या चीज? जब घर में पानी ना आए तो फोन ना लगाओ, वर्शिप चालू करो। क्योंकि जब आप वर्शिप करेंगे पानी आ जाए, सही होता है। दूसरे क्या नहीं, फोन पे फिर भी आता रहता है, भाई आपके आया नहीं आया नहीं आया, और यहाँ भर रहा है। ऐसे ही हो रहा है भैया, ऐसे ही हो रहा है। तो हमने बाय फेथ कहा कि भाई आप देखना पानी की किल्लत नहीं होगी। जिस साल हम शिफ्ट हुए उसी साल सारी ये बिजली की लाइनें हमारे एरिया में तो खैर डली नहीं थी, तो कट लगते थे 5-5 घंटे, सच में बड़े लंबे लंबे कट लग रहे। तो भाई थैंक गॉड खुदा ने अकल दी, भाई जनरेटर लिया तो वो चलता रहा, लेकिन लाइट बहुत जाती थी, बहुत गई लाइट। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, धीरे धीरे वो भी सिचुएशन इंप्रूव हो गई। तो करने का तरीका खुदा का है। आप अगर खुदा का साथ लें तो ये यात्रा है। इस यात्रा में भाई कई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसा एक्सोडस के लोगों को मिलेंगी। अब उस यात्रा में आप क्या करते हैं
ये आपकी बात है। अब आपकी समझ आ रही है? मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ जिस खुदा ने अब तक खिलाया और प्रोवाइड किया, आगे वो ही प्रोवाइड करेगा। आपकी समझ आ रही है? हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु ही प्रोवाइडर है, और प्रभु ही आपके लिए, हम सबके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। बस प्रभु पे भरोसा रखिए। यस लॉर्ड। चला ऐसी आज तो भाई मकपेला का इनॉग्रेशन हो गया, यानी अब यहाँ से आशीषें डबल हो गई। खुदावन का नाम मुबारक। मैं जब बहन शोभा की टेस्टिमनी सुनता हूँ, बेटी अरीन यहाँ बैठी है, सब इनकी गवाहियां मुझे मालूम है। भाई अभिषेक धन्यवाद हो, शादी हुई, बहुत बढ़िया परिवार है, लेकिन इस परिवार ने भी काफी कुछ खोया। अगर मैं एक परिवार की बात लूंगा, खोया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मकपेला का मतलब है जो खोया अब उसका दुगना होने वाला है। अगर आप में से कोई यहाँ बैठा है इस वक्त, या आप जो सुन रहे हैं, आपने कुछ खोया, आज आप भी अपने घर में एक लड्डू बांटिए। आज मकपेला का इनॉग्रेशन हुआ है, एक जगह जहां आशीषें दुगनी हो जाती है, यानी कि जो खोया उसको दुगना करके खुदा ले। और तब अय्यूब की किताब खत्म होती है। अय्यूब किताब यहाँ जाके खत्म होती है। यस सर। और कितनी अजीब बात, आज मकपेला का इनॉग्रेशन हो रहा है, उधर संडे को हम जॉब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम जॉब के कैरेक्टर पे पहुंचे, तभी भाई का घर की चाबी ने मिली। खुदा की सेटिंग नहीं है, किसकी सेटिंग है? जो इधर मकपेला। ओह हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ। और पहले फरीदाबाद में आके बल्लभगढ़ में मैं एक रेस्टोरेंट में खाता था, हंसते भी थे सब। उसका नाम है गुफा, आज भी है वहाँ। उसका नाम है गुफा रेस्टोरेंट, मोहना रोड पर है। कभी आपको मौका लगा, जब मैं फ्री होता हूँ, कभी हो जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगा मुझे। अब ठीक ठाक खाना था उस टाइम, तो क्या भाई कहाँ हो? गुफा में, गुफा में खा रहे। तो वो तो खैर जैसे भी थी, आज तो सच में गुफा में। कितनी खूबसूरत गुफा, कमरे, फ्रिज, हर चीज एक से एक, एसी लगे गुफा में। नहीं, और सोच के देखिए कौन सी जगह, कौन सी गुफा है जहाँ पे एक रेवलेशन है, एक रिडीमर का, एक छुड़ाने वाले। मैं कहूँ भाई अभिषेक सोच के देखें, भाई अभिषेक के ही परिवार में और ढेर सारे लोग हैं। मैं वैसे बात कर रहा हूँ इन जनरल, भाई के संपर्क में, उनके ऑफिस में कई जगह कितने लोग आएंगे, लेकिन कितनों को ये गुफा मिली, कितनों को मकपेला की आशीषें मिली। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि वो आशीषें आज भाई के पास हैं। सो आज खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। बस 10 गज पे मुमरे हैं, मुमरे के पास थैंक यू लॉर्ड। जब मैं रुका, मैं मुमरे के सामने रुका। जी हाँ। बारिश हो रही थी, पिकअप करने मुझे मुमरे के पास आया, और मुमरे से मैं मकपेला। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये समय है, अब ये समय है कि अब एक रैप्चर, जुलाई का दर्शन भूलिएगा नहीं। That's right, brother. Love that vision. Yes, brother. जब नबी ने देखा कैसे वो ब्राइड जा रही है, Oh my, wonderful. and she's going all the way, and finally she's going up, 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 up. एक दो थे लास्ट में, बिल्कुल जब दर्शन खात्मे पे, मतलब एंड रैप्चर से पहले वहां पे घटना घट रही है। He's screaming loudly, get back in line. एक दो हैं जो भटक रहे हैं, get back in line, get back in line. That's the last thing. After that, the group is going. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। He's doing the same thing with you and I. And to those who have been backslidden, एक move चल रहा है, get back in line. ये last move है. Get back in line. After get back in line,
रिजरेक्शन इस अनॉइंटिंग के लिए Amen, Lord. खुदा ने बख्शी। प्रभु के Amen. नाम की तारीफ। Amen. आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और मैं चाहूंगा हमें से कोई भी एक भाई एक हमारी प्रार्थना करे, फिर हम एक दुआ करके हम लोग खत्म करेंगे। यीशु मसीह में आपका हृदय से बड़ा धन्यवाद देता हूँ Thank खुदावन। you. आज आप इस मकबेला में आए खुदावन, मैं आपका कितना धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि उस समय जब माइटी एंजल उतरा खुदावन और प्रभु जब वो वॉइस ऑफ रिजरेक्शन बोली गई प्रभु यीशु मसीह, कैसे प्रभु अय्यूब बाहर निकल के आ गया उस कब्र से खुदावन, कैसे प्रभु अब्राहम निकल के आ गया प्रभु, कैसे खुदावन मैंने कुछ दिन पहले वो नबी का मैसेज पढ़ा जहाँ पे नबी कह रहे हैं कि क्योंकि क्यों अब्राहम ने ये कब्र खरीदी, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब ने कब्र इसलिए ली थी कि वो एक दिन यहाँ से ही अपने रिडीमर को देखेगा। और उसमें अब्राहम ने ऐसी रेवलेशन के साथ ये कब्र ली कि अगर अय्यूब यहाँ से अपने रिडीमर को देखेगा तो मैं भी यहीं खड़ूंगा, मैं भी सारा को यहीं खड़ाऊंगा कि जब रिडीमर प्रकट होगा हम भी उस रिडीमर को यहीं से ही देखेंगे। धन्यवाद देता हूं कैसे आपने इस रेवलेशन को प्रकट किया कि कैसे वो मसीह हमारी मकबेला है खुदावन, कैसे वो माइटी एंजल आज इस बादल को उतर के आया और कैसे एक बार भाई आशीष ने बताया था कि ये बादल है जिसमें ये है वो मकबेला की गुफा कि जो इसमें जाता है वो मरा नहीं रह सकता, वो रिजरेक्शन होगा खुदावन। कैसे सात गजब के शब्द बोले गए प्रभु, इन्होंने हमारा स्पिरिचुअल रिजरेक्शन किया खुदावन, आज इस रूप में उन्होंने हमें जगाया खुदावन, कैसे एंजल की वॉइस के द्वारा हम जगाए गए खुदावन। प्रभु कैसे उसने हमें क्विकेट किया खुदावन कि वे इस रिजरेक्शन को देख सके खुदावन। ओ लॉर्ड जैसे नबी ने बोला यू आर द पार्ट ऑफ दिस रिजरेक्शन, धन्यवाद देता हूं कि कैसे आपने इस रिजरेक्शन के रेवलेशन को हमारे पर प्रकट किया खुदावन। कैसे अय्यूब ने उस अय्यूब को निकलते हुए देखा खुदावन, उसने देखा इससे पहले वहां कोई उतरा खुदावन और फिर वहां से उसने अय्यूब का दर्शन दिखाया खुदावन। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने हमें खुदावन एक ऐसे रेवलेशन से भरा प्रभु ताकि हम इस घर का नाम मकबेला रख पाए प्रभु। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमने सीजन को पहचाना खुदावन कि कैसे प्रभु जी एक समय आया खुदावन और आपने हमारे बीच में इस मूव को स्टार्ट किया कि कैसे अपने घरों को नामों को रखना शुरू करा, कैसे वो ब्यूला लैंड निकल के आया खुदावन, कैसे वो ईगल नॉक निकल के आई, कैसे चलनी चल रही थी पिछले कुछ सालों के अंदर और कैसे खुदावन ममरे निकल के आया और इस ममरे के सामने ही खुदावन मकबेला पाई जाती थी। वो खुदावन जेरूसलम 18 में आप प्रकट हुए अब्राहम पे और खुदावन जब आप उसके सामने प्रकट हुए तो क्या आपको मकबेला नहीं दिख रही होगी खुदावन? वो खुदावन आप इस थॉट से उतरे थे खुदावन वहां पे कि आप एक रिजरेक्शन करने वाले थे। वो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके नबी ने बताया कि आपने अब्राहम और सारा की बॉडी को नया कर दिया प्रभु। वो खुदावन आपने सारा की मरी भूमि को नया कर दिया खुदावन। वो मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज ये माइटी एंजल जो उतर के आया प्रभु इस युग में उसने हम स्पिरिचुअल सारा के भूमि को रिजरेक्ट कर दिया ताकि हम प्रभु जी स्पिरिचुअल आइजैक को पैदा कर सके खुदावन। उस प्रॉमिस सन को प्रभु जो आज का संदेश है जो कि पूरा वचन है खुदावन वो यीशु को अपने जीवन से पैदा कर सके खुदावन ताकि वो एक दिन चिल्लाए जोर के शब्द से प्रभु ताकि कब्रें खुल जाए प्रभु। वो खुदावन के मकबेला की गुफा में कैसे खुदावन सीजन की ओर लेके जाती है कि कैसे ये ब्राइट फाइनल वॉइस बन जाएगी खुदावन और कैसे वो वॉइस ऑफ रिजरेक्शन को बोलेगी और हमारे संग जी उठेंगे। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं खुदावन कि ये घर तो देखने में प्रभु ईंट पत्थर लकड़ी हो सकती है प्रभु लेकिन आपने हमें भी इस वचन से भरा है खुदावन जिसे आपने इस घर से जोड़ दिया खुदावन। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कैसे अय्यूब को खुदावन उस परेशानियों के समय में खुदावन आप ऐसे समय में ले गए ताकि वो उस इन चीजों को सोच सके खुदावन ताकि वो उस रिजरेक्शन के रेवलेशन पे आप उसे लेके आ सके। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं खुदावन आपने सच में हमें भी ऐसे टेस्टिमोनी ट्रायल से निकाला लेकिन प्रभु जी अगर वो टेस्टिमोनी ट्रायल्स नहीं आते खुदावन तो सच में हम आपकी ग्रेस को कैसे पहचानते प्रभु, हम आपकी दया को हम आपके लव को कैसे पहचान करते और आप इस सीजन में और आप इस समय में जो कर रहे हैं खुदावन हम कभी नहीं देख पाते खुदावन लेकिन आपका धन्यवाद उन टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए खुदावन तो प्रभु जी ताकि हम इस प्रमोशन को आज देख पा रहे हैं प्रभु जी। मैं आपको इसके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूं खुदावन कि कैसे आज आपने उन बातों को खोला खुदावन जिन्हें हम सोच भी नहीं पाए प्रभु लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पास्टर भाई को इस्तेमाल किया खुदावन आज आपने हमें आशीष दी खुदावन और मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमारे घर में खुदावन 7 भाइयों को उतारा और प्रभु जी भाई नहीं है खुदावन प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ ये 7 अनॉइंटिंग है प्रभु जी क्योंकि ये फाइनल वॉइस है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि जब इस युग में 7 उतरे तो उन्होंने खुदावन रिजरेक्शन कर दिया खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि आज आपकी वो 7 आत्मा इस घर में उतरे खुदावन ताकि प्रभु जो वचन बोले गए मकबेला के लिए कि वो
मकबीला में डबल की आशीष है प्रभु जैसा आपने वचन बोला बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू ताय वर्ड मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी इस विजिटेशन के लिए खुदावन और मैं आपके दिल से वेलकम करता हूँ खुदावन कि आपने इस दिन आपने प्रभु जी आला गुजारा किया खुदावन मैं आपको बहुत बहुत नाम मुबारक कहता हूँ मेरे पास भाई को बहुत आशीष और बरकत दे खुदावन और माइक इस्तेमाल करें खुदावन और खुदावन हम इस अय्यूब के रेवलेशन में भर सके खुदावन ताकि प्रभु जी मैं भी देख सकूं खुदावन एक दूसरे अभिषेक को खुदावन वो खुदावन मैं आपके नाम को गुहार करता हूं मेरे एक आए हुए भाई को बहुत आशीष और बरकत दे खुदावन और इस सारे प्रोग्राम पे आपने बड़ी दया करी खुदावन मैंने सच में देखा खुदावन कि कैसे आपने हमारी बड़ी मदद करी ताकि तमाम और कंडीशन थी खुदावन ओ लेकिन आपने सीजन को पलट दिया खुदावन आपने समय को इवनिंग टाइम को पलट दिया मैं आपको इसलिए बहुत बहुत इस धन्यवाद की वेद को विनती प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते मांगता हूं सुने और कबूल करें आमीन धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह फिर से कि आपने हम चंद भाइयों को आज मौका दिया कि आप इस ग्लोरियस ओकेजन को विटनेस कर सकें जब खुदा ने आपने एक प्यारे घर से भाई अभिषेक बैनरीन भाई बहन शोभा को आशीषित किया जिसका नाम मकबेला रखा गया और आज उसका फीता कटा और आज हम उस मिस्ट्री में प्रवेश किए खुदा हम स्पिरिचुअली भी कुछ यही हो कि हम उस मिस्ट्री में पदार्पण कर पाए और ये एक ऐसी मिस्ट्री बने जो हमारी तमाम बंधुआई को खत्म कर दे हमें यहाँ से उड़ा के ही आपका नाम मुबारक हो आपके नाम की जय खुदा मेरी विनती और प्रार्थना है एक मुकाशवा होता है इससे पहले कि किसी घर की नींव रखी जाए और आपने कहा मैं इसी चट्टान मुकाशवे की चट्टान पे अपना घर तामीर करूंगा तो आज एक मुकाशवा था इस परिवार के साथ मकबेला में जिस पे आज एक घर तामीर हुआ और खुदा दुआ है उस मुकाशवे को बना रहने का फजल दे और उसका जवाब इस रूप में दे कि यहीं से इनका रैप्चर भी हो और हम सब भी पूरे यहाँ आए हम सब भी अब उड़ने वाले हैं खुदा अपनी आमद को हेसन करें और तौफीक दें कि हम यहाँ से उड़ के जाने वाले हैं दुआ है तमाम जो बरगिश्ता है लौट के आए और खुदा आपके साथ सही रीति से चल सके कल के लिए भी हमें तैयारी बख्शें घर को बहुत ब्लेस करें आपकी आशीषें यहाँ बनी रहे हर दुष्ट की चाल जो काम करने वालों के कारण औजारों के कारण या किसी भी कारण यहाँ पे आई हो आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में यहाँ से नेस के लिए और आपका पवित्र आत्मा यहाँ चुंबिश करे आपके लहू के अंदर इस घर को बांध दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं आपका नाम पाक माना जाए आपकी बादशाही आए आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बुराई से बचाएं बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है आमीन अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम पवित्र आत्मा की रिफाकत साथ दूतों का अभिषेक और अब्राहम की आशीष हम में से हर एक के साथ अब से हो और हमेशा बनी रहे आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।